میں تمام دوستوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم الشان میٹنگ جن دوستوں نے آرگنائز کی ہے ان کو بھی اتھا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستوں سے خطاب کریں جناب میاں محمد سلیم صاحب، آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں جناب میاں محمد سلیم صاحب۔ تمام دوستوں کو، تمام مہمانوں کو السلام علیکم۔ آج میرا گلا خراب ہے، زیادہ بات نہیں کر سکوں گا۔ تمام بھٹی صاحب ہیں، پہلے تو میں اپنی تمام ٹیم کو بہت پیار دیتا ہوں، بہت عزت دیتا ہوں۔ انہوں نے آج بہت محنت کر کے یہ ساری رونق بنائی ہے، یہ سارا اہتمام کیا۔ میرے دوستوں، میرے تمام بھائیوں، پاکستان آج اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 90 ارب ڈالر قرضہ ہے۔ پاکستان کے زر ڈالر کے ذخائر اس وقت 10 ارب ڈالر سے بھی نیچے ہیں، جو کہ ایک سال پہلے تقریباً 24 ارب ڈالر تھے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ 24 ارب ڈالر سے نیچے آ کر 19 ارب ڈالر پر پہنچ چکی ہے۔ ہماری ایکسپورٹ جو کہ 35 ارب ڈالر تھی وہ 55 ارب ڈالر پہ پہنچ چکی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایکسپورٹ کا بہتر ہونا سب سے لازمی ہے۔ ہماری پچھلی گزری ہوئی حکومت، نون لیگ کی حکومت، اس نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ آج ہمارا ہر بچہ 2 لاکھ روپے کا قرض دار ہے، لیکن جو آج پیدا ہوا وہ بھی 2 لاکھ دینے کا قرض دار ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں وسائل نہیں ہیں، بے مثال وسائل ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کے چوتھے بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں، دنیا کے چند ممالک میں ہیں۔ آپ زراعت کے حوالے سے مشہور تھا، جو کہ آج ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں کہ یہاں پر ہم بجلی بنا سکتے ہیں کہ ہمیں نہ تو آئی پی پیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں کسی کوئلے کے پاور یونٹ کی ضرورت ہے۔ ہم پانی سے بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن سابقہ حکومتوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر آج سے 5 سال پہلے شروع کی ہوتی تو آج یہ ملک اندھیرے میں نہ ہوتا۔ آج ہمیں جو بجلی کا یونٹ 25 روپے یونٹ مل رہا ہے وہ اتنا مہنگا نہ ملتا، 2, 2.5, 3 روپے یونٹ ہوتا۔ ہماری انڈسٹری جو کہ 70% آج ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ ہماری ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کہ 35% انڈسٹری بنگلہ دیش میں اپنی پروڈکشن شروع کر چکی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں را مٹیریل کا مہنگا ہے، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ اور یہ سابقہ حکومتوں کا سارا کارنامہ ہے، اس میں کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف وہ آپ ووٹ دیں، وہ حکومت میں آئے، انشاءاللہ تعالی جو ابھی تک عمران خان صاحب کے انہوں نے ہمیں 3-4 پروجیکٹ دیے ہیں، جس میں شوکت خانہ ہے، جس میں نال یونیورسٹی ہے، ایک اور پروجیکٹ ہے کہ آج تک انہوں نے جو بھی وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو بھی ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ مکار نہیں ہے، وہ جو بات کرتا ہے اس کا پہرا دیتا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، پی ٹی آئی کو کامیاب کریں۔ اگر آج ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیا اس ملک کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے اور برا وقت ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے تمام عزیز و اقارب، تمام رشتے دار، دوست احباب، جس طرح بھی ان کی منتیں کریں، ان کو منائیں، یار ایک دفعہ ووٹ دیں، پاکستان کے لیے ووٹ دیں، اس غریب عوام کے لیے ووٹ دیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اس محفل کے روح رواں جناب
मियां सलीम साहब, साकिब भट्टी साहब, मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल में तशरीफ लाए। तो दोस्तों, इलेक्शन 25 तारीख बहुत करीब है, गिनती के दिन रह गए हैं। तो इस दफा सारी बातें आपको मियां सलीम साहब ने बड़ी तफसील से बता दी हैं कि इमरान खान साहब को हम क्यों वोट देना चाहते हैं, उनको क्यों वजीर आजम बनाना चाहते हैं। उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत सबके सामने है, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। वो इक्तदार के बगैर एक आला दर्जे का हॉस्पिटल बना सकते हैं, एक आला दर्जे की यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। हम सोचते हैं या कभी हमने गौर किया कि हमारा मसला क्या है। अगर कोई ये कहे कि मेरे यहाँ साफ पानी पीने का मुयस्सर नहीं, मेरा बड़ा मसला ये है, हो सकता है। कोई तालीम की बात करे कि तालीम बच्चों को मुयस्सर नहीं, मैं इससे भी किसी हद तक इत्तफाक करता हूं। कोई सेहत की बात करे, इस बात की लोगों समझने की बात ये है, हमारे बड़ों की जो गलतियां कोताहियां होती रही, उनके कफारे का वक्त आन पहुंचा, उनसे निजात का वक्त आन पहुंचा। रब ने आपकी सुन ली, उसने आपकी मदद की, किस शक्ल में की, इसका अंदाजा, इसका पता 25 तारीख को शाम 7-8 बजे तक चल जाएगा। हमारे जैसा कमल जैसे इदारे की शक्ल में और फिर पीटीआई बनाकर 22 साल गलियों में धक्के खाता रहा, कोई उसकी बात सुने। हम सोचते हैं या कभी हमने गौर किया कि हमारा मसला क्या है। अगर कोई ये कहे कि मेरे यहाँ साफ पानी पीने का मुयस्सर नहीं, मेरा बड़ा मसला ये है, हो सकता है। कोई तालीम की बात करे कि तालीम बच्चों को मुयस्सर नहीं, मैं इससे भी किसी हद तक इत्तफाक करता हूं। कोई सेहत की बात करे, इस बात की लोगों समझने की बात ये है, हमारे बड़ों की जो गलतियां कोताहियां होती रही, उनके कफारे का वक्त आन पहुंचा, उनसे निजात का वक्त आन पहुंचा। रब ने आपकी सुन ली, उसने आपकी मदद की, किस शक्ल में की, इसका अंदाजा, इसका पता 25 तारीख को शाम 7-8 बजे तक चल जाएगा। हमारे जैसा कमल जैसे इदारे की शक्ल में और फिर पीटीआई बनाकर 22 साल गलियों में धक्के खाता रहा, कोई उसकी बात सुने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, इंसाफ की हुकूमत होगी और मॉडल टाउन के शहदा को तहरीक इंसाफ की हुकूमत कभी नहीं भूलेगी और उन मजलूमों के लिए इंसाफ का दरवाजा खोला जाएगा और जो कातिल हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो, इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा उसे। मेरे दोस्तों, अगली बात मैं आपसे अर्ज करता हूं। मैं सैकड़ों मर्तबा ये बात वादे की सूरत में कर चुका हूं। NA 133 में पीने का साफ पानी, यहां के सीवरेज और गटर, इनके लिए इब्तदा में डिस्पोजल और बाद में सारी सीवरेज लाइन रीवैम्प की जाए। ये मैं और इसके अलावा जो मुकामी दोस्तों का ये एक मुतालबा है, जाहिर है जब बड़े प्यारे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि अपने माँ बाप के यहाँ जाके दुआ करे कब्र के ऊपर, और कब्रिस्तान यहाँ से 27 किलोमीटर। इंशाल्लाह इसका भी जायजा लूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये तीनों काम इंशाल्लाह करें। बाकी इमरान खान के वादे हैं और इमरान खान अपने वादे से पीछे नहीं हटता। पहला वादा उसने ये किया है कि जाके NA 133 के लोगों को, नौजवानों को ये बता दिया जाए कि अगले 5 सालों के अंदर 1 करोड़ नौकरियां होंगी, 1 करोड़ नौकरियां। दूसरी बात उसने ये कहा कि लोगों को बता दो कि 5 सालों में 50 लाख
छोटे घर तामीर किए जाएंगे और लोगों को आसान शराइत पे दे दिए जाएंगे। और बिलखुसूस जिस इलाके के अंदर कोई सनती स्टेट होगी, जैसे कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो वहां के मजदूरों के घर जो उन कॉलोनियों के 50 लाख का हिस्सा है, वो उनकी सनतों के करीब कॉलोनियां बनाई जाएंगी ताकि उन्हें दूर सफर करके अपने कारखाने या अपनी फैक्ट्री में न जाना पड़े। चुनाचे दोस्तों, आपके साथ ये इमरान खान का वादा मैं आपको याद दिला रहा हूं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह ये पुल, सड़कें, बसें, ट्रेनें ये चलेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगी, लेकिन तरजीह में पीने का साफ पानी, गटर का इंतजाम, डिस्पोजल यूनिट, बच्चों की तालीम, सबकी सेहत और रोजगार होगा, उसके बाद ये काम होंगे। आखिरी बात, बल्कि आखिरी नहीं है, अव्वल और आखिरी वही है। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, उनकी बात है। मेरे दोस्तों, नामूसे रिसालत और खत्म नबूवत पे अगर जिंदा रहे कभी आंच नहीं आने देंगे, कभी आंच नहीं आने देंगे। और याद रखिए, मैं ये बात हर जलसे के अंदर और मजमे में कहता हूं, कभी अपनी पार्टी से इस मसले पे बगावत करना पड़ी तो हम बागी होंगे और नामूस रिसालत की हिफाजत करेंगे। कभी इंशाअल्लाह ताला नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पे आंच नहीं आने देंगे। और मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह जरा नारा लगा के जवाब दीजिए, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मेरे दोस्तों, गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह आपके मुस्तकबिल के वजीर आजम जनाब इमरान खान परसों जुमेरात के दिन 8 बजे शब अकबर चौक में खिताब करेंगे। आप सबको मैं दावत देता हूं कि वहां पर चौक दर चौक शामिल हो। मेरी ये ख्वाहिश रही है कि साकिब भट्टी साहब हमारे हम सफर हूं। आज यहां आके इंतहाई खुशी हुई। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे नजरियाती लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है और पैट के साथियों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह 25 तारीख के बाद जो मॉडल टाउन में सानिया हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन जालिमों को, उन कातिल दरिंदों को जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। हमारे कैद इमरान खान कहा करते थे कि मैं इन करप्ट हुक्मरानों को जेल भेजूंगा। आपने देखा कि इमरान खान ने उनको जेल भेज दिया। अगली बात, इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद इनकी जायदादें जब्त होंगी, इनसे लूटा हुआ सरमाया हम वापस लेंगे और मॉडल टाउन के कातिलों से भी इंशाअल्लाह हिसाब लेंगे। क्योंकि एजाज चौधरी साहब कह के गए हैं कि यह हुकूमत इमरान खान की नहीं होगी, एजाज चौधरी की नहीं होगी, अब्दुल करीम कलवाड़ की नहीं होगी, इंसाफ की हुकूमत होगी, जहां सबको इंसाफ मिलेगा।